Hi guys, how are you all? What's up? And welcome back to Book Talks with Dhanish. After a gap of 2 months, I am finally back with a brand new episode, and this time we are starting something completely different, something exciting, something mysterious. Until now, we have explored books and stories, but from today, we begin a new journey into history. Not the boring classroom type of history, not the open or your textbook and memorize dates kind of history, but the real stories, the mysteries, the discoveries, the questions that are still unanswered. This time, I will be exploring fascinating topics inspired by the last mysteries of the world and many more historical events that might change the way you look at the past. But wait, if I simply sit and explain everything alone, it might start feeling like a history lecture, and I definitely don't want that. So instead of teaching history, we are going to experience it, and I won't be alone. Let me introduce to my three friends who will join me on this journey. First, we have Atharva, the one who loves digging deep into ancient facts and forgotten civilizations, calm, intelligent, and always ready with historical insights. Then there's Soham, curious, observant, sometimes skeptical. He brings in practical questions, connects things to real life, and keeps the discussion grounded. You can also say him like the Maharashtrian Mulga. And finally, it's Rosie. She is articulate, sharp, and thoughtful. She helps us see the bigger picture and connects our past to the modern world in a way that makes everything clearer. Together, we four of us will explore history not as a subject but as a conversation. Every episode, we will uncover a mystery, discuss different theories, question what we know, and maybe even challenge what we believe. So, if you love history, archaeology, ancient civilizations, and mysteries that still confuse the world, you are in the right place. Make sure you subscribe to the channel, share this with your friends, and stay tuned because this is just the beginning. Let's begin our journey into the past. अगर हम इंसानों की कहानी को सच में समझना चाहते हैं तो हमें अफ्रीका की ओर देखना होगा, क्योंकि आज ज़्यादातर पैलियोंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि अफ्रीका ही मानव जाति की जन्मभूमि है। लाखों साल पहले हमारे आधुनिक मानव पूर्वज पेड़ों से नीचे उतरे और अपने आसपास के घास के मैदानों को तलाशना शुरू किया। यही वह पल था जिसने मानव इतिहास की पहली दिशा तय की। म्हणजे आपण सगळे आफ्रिकामधून आलो इतक्या वर्षापूर्वी? हाँ, और इस बात को साबित करने में जीवाश्मों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पैलियोंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा खोजे गए फॉसिल्स ने हमें शुरुआती मानवों के बारे में काफी कुछ सिखाया है, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी है। One of the most important places in this story is the Afar Basin in northern Ethiopia. It is one of the most inhospitable regions in the world. Dry, harsh, and extremely challenging. But despite its harsh conditions, this region has given scientists some of the most crucial evidence to write the earliest chapters of human prehistory.
अरे मला सांग, पण तिथे काय सापडलं होतं? व्हॉट एक्झॅक्टली वॉज डिस्कवर्ड देअर? साल 1974 में इसी अफार बेसिन में एक कंकाल मिला। यह खोज मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी। इस कंकाल को नाम दिया गया लूसी। अनुमान लगाया गया कि वह लगभग 3 मिलियन साल से भी अधिक पुरानी थी। Yes, Atharva, you're absolutely right. Lucy belonged to a species called Australopithecus afarensis. After her discovery, most fossils of the same species were found. These discoveries help scientists better understand how our early ancestors developed. अरे सिर्फ लूसी ही नहीं, अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों से और भी प्राचीन अवशेष मिले हैं, जैसे लगभग 4.4 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म जो मानव विकास की और भी शुरुआती कड़ियों को दिखाते हैं। Yes, Atharva, this includes some of the oldest known hominids, the closest ancestors of modern humans. अच्छा, मग एक गोष्ट समजत नाही. जर सगळ्यात सुरुवातीचे पुरावे आफ्रिकामधून सापडतात, तर आफ्रिकाच्या बाहेर काहीच का सापडलं नाही? यही तो सबसे बड़ी उलझन है। ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि मानवता की शुरुआत अफ्रीका से हुई, लेकिन अफ्रीका के बाहर शुरुआती होमिनिड्स के प्रमाण बहुत कम मिले हैं और यही रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है। Okay, Atharva. So, while Africa tells us where our story may have begun, it also leaves us with unanswered questions. Who were we before Lucy? And how did we spread across the world? रोजी, लूसी सिर्फ शुरुआत थी, कहानी अभी बाकी है। एक गोष्ट अजून डोक्यात येते. जर मानव जातीची सुरुवात आफ्रिकामध्ये झाली, तर मोठे मोठे फॉसिल फाइंड्स फक्त काही ठराविक भागातच का सापडतात? बाकी आफ्रिकामध्ये का नाही? यह सवाल वैज्ञानिकों को भी लंबे समय तक परेशान करता रहा। क्या उन क्षेत्रों की परिस्थितियां बाकी अफ्रीका से अलग थी? क्या वहाँ विकास की प्रक्रिया कुछ अलग तरह से हुई? 1984 में पेरिस के कॉलेज दे फ्रांस के प्रोफेसर यीव्स कॉपेंस, जो लूसी के सह खोजकर्ता भी थे, उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। Yes, Atharva, I know about this. According to Yves Coppens, around 8 million years ago, movements in the Earth's crust created one of Africa's most dramatic geological features, the Great Rift Valley. This massive fault line stretches from the Red Sea all the way down to Zimbabwe. बराबर बोली तू। इस भूगर्भीय हलचल ने पूर्वी अफ्रीका को मध्य और पश्चिमी अफ्रीका से अलग कर दिया और यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा परिवर्तन। Yes, the eastern part of Africa gradually transformed into open savanna and arid steppe, dry, wide grasslands with fewer trees. Meanwhile, Central and Western Africa remained humid, dense and forested. म्हणजे क्लायमेटमुळे इव्हॉल्युशन वेगळं झालं? बिल्कुल सही। पृथ्वी की सतह में हुए इन बदलावों ने दो बिल्कुल अलग पर्यावरण तैयार किए और इन अलग अलग परिस्थितियों में रहने वाले जीवों को अपने अपने तरीके से अनुकूलन करना पड़ा। Also, in Central and Western Africa, anthropoids like chimpanzees and gorillas continued to thrive in forest environments. But in Eastern Africa, something different began to happen. पूर्वी अफ्रीका के
निवासियों ने धीरे धीरे सीधा चलना शुरू किया। यही वह क्षण था जब द्विपाद चाल यानी 2 पैरों पर चलना विकसित हुई। वॉकिंग ऑन 2 feet म्हणजे बिपेडलिझम, हा ना? Yes, bipedalism, and in the wide, sparsely forested savanna, walking upright gave these early ancestors a major advantage. They could see predators from a distance, travel efficiently, and free their hands for carrying tools or food. द्विपाद चाल का उदय मानव विकास की शुरुआत का संकेत था। यही वह बिंदु है जहां से मानव जाति की असली कहानी शुरू होती है। मग पुढे काय झालं? ते तिथेच राहिले का? No, not at all. Much later, these early humans began to explore beyond the eastern regions. सबसे पहले वे रिफ्ट वैली के साथ दक्षिण की ओर बढ़े। फिर समय के साथ उन्होंने पूरे अफ्रीका को बसाया और अंत पूरी दुनिया में फैल गए। So, what began as a geological shift may have shaped the destiny of humanity itself. कभी कभी पृथ्वी की हलचल ही मानवता की दिशा तय करती है। In recent years, new fossils discoveries have started reshaping our understanding of mankind's family tree. What once seemed simple is now becoming more complex. म्हणजे अजूनही सायंटिस्ट कन्फ्युज्ड आहेत का? फॅमिली ट्री अजून क्लिअर नाही? हाँ, मानव विकास का वृक्ष उतना सीधा नहीं है जितना पहले माना जाता था। नई खोजों ने कई नई सवालें खड़े कर दिए हैं। सितंबर 1994 में अमेरिकी वैज्ञानिक टॉम वाइट के नेतृत्व में एक टीम ने इथोपिया के अवाश बेसिन में लगभग 4.4 मिलियन वर्ष पुराने होमिनिड जीवाश्म खोजे। Yes, Atharva, absolutely right. These fossils were classified as a completely new species called Ardipithecus ramidus. The name means original ground ape. ओरिजिनल ग्राउंड एप म्हणजे तो जंगलात राहत होता का? पहली नजर में तो ऐसा ही लगा, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्मों की गहराई से जांच की तो पता चला कि यह प्रजाति लूसी की प्रजाति यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस से काफी अलग थी। And interestingly, Ardipithecus ramidus appears to have lived in forest environments, yet it already walked upright. That discovery surprised many scientists. मग तो एप आणि लूसी यांच्यामध्ये लिंक होता का? यही तो असली उलझन है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि आर्डीपेटेकस रेमिडस बंदरों और ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस के बीच की कड़ी थी या फिर विकास की एक ऐसी शाखा जो बाद में समाप्त हो गई। And the story didn't end there. Just a few months later, another major discovery added to the confusion. उत्तरी केनिया में लेक तुर्काना के पास पैलिएंथ्रोपोलॉजिस्ट मियू लिकी की टीम को 3.9 से 4.2 मिलियन वर्ष पुराने कई जीवाश्म मिले। Also, this species was named as Australopithecus anamensis. A well-preserved shin bone fragment proved that this proto-human already walked upright. म्हणजे लूसी आधीच अपराईट चालायला शिकली नव्हती, त्याआधीच कोणी चालत होतं? हाँ, और कुछ हड्डियां लूसी से भी ज्यादा प्राचीन और आदिम विशेषताएं दिखाती थी। उदाहरण के लिए एक निचला जबड़ा मिला जिसमें ठुड्डी पीछे की ओर झुकी हुई थी और दांतों की पंक्तियां
लगभग समानांतर थी। On this point, most scientists now agree that Australopithecus anamensis was the direct predecessor of Australopithecus afarensis, means Lucy species. म्हणजे फॅमिली ट्री सरळ रेष नाही तर एक गुंतागुंतीचे जाळं आहे. बिल्कुल सही कहा तुमने सोहम। मानव विकास सीधी रेखा नहीं बल्कि कई शाखाओं वाला वृक्ष है। कुछ शाखाएं आगे बढ़ी और कुछ रास्ते में समाप्त हो गई। The deeper scientists dig, the more complex our origins appear, and perhaps Lucy was not the beginning, but just one chapter in a much larger story. Just when scientists thought most early human fossils were concentrated in East Africa, another discovery changed the conversation. पुन्हा एक नवीन फॉसिल. हाँ, 1995 में फ्रांसीसी पैलियोंथ्रोपोलॉजिस्ट मिशेल ब्रूनेट चाड की यात्रा पर गए। वहाँ बहर एल गजल नामक रेगिस्तानी क्षेत्र में कोरोटोरो के पास उन्हें एक निचला जबड़ा मिला। That jawbone belonged to an extremely old proto-human. Brunet named him Abel in memory of his colleague Abel Brillanque, who had died during excavations in Cameroon in 1989. म्हणजे फॉसिलचं नाव त्याच्या मित्रावरून ठेवलं. हाँ, विज्ञान में खोज के साथ भावनाएं भी जुड़ी होती है। जब वैज्ञानिकों ने एबेल के साथ बचे हुए दांतों की गहराई से जांच की तो उनका स्वरूप धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। Abel appears to have had a sturdy build, a low forehead, and a receding chin. He probably walked on two legs. म्हणजे तो पण बिपेडल होता. संभावना यही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 3 से 3.5 मिलियन वर्ष पुराने इस जबड़े में ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस से काफी समानता थी। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी थे। Like example, Abel's molars had only a thin layer of enamel. This suggests that his diet likely consisted of softer food like fruits, young leaves, perhaps even small birds. म्हणजे तो लूसी सारखा होता पण पूर्णपणे नाही. बिल्कुल सही, वह कुछ मामलों में लूसी से मिलता जुलता था लेकिन पूरी तरह समान नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। You know, Abel was discovered nearly 2,500 kilometers to the west of the Great Rift Valley. काय? इतक्या दूर? हाँ, उस समय तक ग्रेट रिफ्ट वैली को मानव जाति की आधिकारिक जन्मस्थली माना जाता था, लेकिन एबेल की खोज ने यह धारणा हिला दी। If proto-humans were living so far west, perhaps the story of human origins was not limited to the Rift Valley alone. शायद मानवता की कहानी एक ही स्थान से शुरू नहीं हुई, या फिर हम अभी तक पूरी तस्वीर देख ही नहीं पाए हैं। Yeah, I know this, but Abel's discovery far to the west of the Great Rift Valley raised a serious question. If humanity began in East Africa, how did a proto-human appear 2,500 kilometers away? म्हणजे तो तिथे एवढा लांब कसा पोचला? इसी बात पर वैज्ञानिकों के बीच मतभेद है। कुछ शोधकर्ता अब यह मानने को तैयार नहीं है कि केवल ग्रेट रिफ्ट वैली ही इंसानों और वानरों के अलग अलग विकास के लिए जिम्मेदार थी। And you know, one of the strongest alternative voices was Mitchell Brunet. हाँ रोजी, तुमने एकदम सही कहा। ब्रूनेट का मानना था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस एबल के समय से बहुत पहले ही
पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में फैल चुके थे। उनके अनुसार से आदिम मानव रिफ्ट वैली के पश्चिम के जंगलों से उभरे और फिर तेजी से पूरे अफ्रीका में फैल गए। म्हणजे सुरुवात ईस्ट आफ्रिकामध्येच झाली असं नाही म्हणायचं? ऐसा जरूरी नहीं है। उनकी थियोरी के अनुसार शुरुआत पश्चिमी जंगलों में भी हो सकती थी और धीरे धीरे यह समूह अलग अलग क्षेत्रों में बस गए, जिससे अफ्रीका की विविध जनजातियों की नींव पड़ी। Yeah, but not everyone agreed. पर ह्यूज कॉपेंस अपने विचार पर अडिग रहे। उनके अनुसार ईस्ट अफ्रीका ही मानवता का गार्डन ऑफ ईडन है। म्हणजे त्यांना अजूनही वाटतं की सुरुवात तिथेच झाली? हाँ, रिफ्ट वैली के निर्माण से लगभग 8 मिलियन वर्ष पहले और एबल के समय तक लगभग 3.5 मिलियन वर्ष पहले काफी समय बीत चुका था। इतने लंबे समय में नई प्रजातियां विकसित हो सकती थी और अपने मूल स्थान से बाहर निकलकर नए क्षेत्रों की खोज कर सकती थी। Perhaps East Africa was the cradle, but the story did not stay there. Did you know about this? मानवता की कहानी सीधी रेखा नहीं है, यह कई शाखाओं वाला वृक्ष है। The first Australopithecine fossil was not found in East Africa, but in South Africa. In 1924, the skull of a child was discovered in a cave near Tong. म्हणजे सुरुवात दक्षिण आफ्रिकेत झाली? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। उस बच्चे की खोपड़ी बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस के रूप में पहचानी गई। यह प्रोटो मानव लगभग 2 से 3 मिलियन वर्ष पहले सवाना क्षेत्र में रहता था। Later, another hominid lived in the same region. हाँ, और उसे कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टरस। इसके जबड़े में बहुत बड़े दांत होते हैं। म्हणजे तो गवत झाडं जास्त खात असणार? हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसे एक विशेष प्रकार का शाकाहारी माना जाता है। Then the spotlight shifted to Olduvai Gorge in Tanzania. There, the renowned anthropologist Louis Leakey discovered something remarkable. हाँ, उन्होंने होमो हैबिलिस के अवशेष खोजे। यह लगभग 1.5 से 2.5 मिलियन वर्ष पुराना था। इसकी खोपड़ी अधिक गोल थी। औसतन 630 घन सेंटीमीटर का मस्तिष्क आयतन। म्हणजे मेंदू मोठा झाला होता? हाँ, और यह 1.45 मीटर तक लंबा था, लगभग 40 किलो वजन। सबसे महत्वपूर्ण वाली बात यह है, यह पत्थर के सरल औजार बना सकता था। With well-aimed blows, stone splinters were shaped into sharp cutting tools. The first true toolmaker had appeared. हाँ, आज हम होमो रुडोल्फेंसिस और होमो इरगैस्टर को भी जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी निश्चित नहीं है कि इनमें से किसने आगे चलकर जन्म दिया। और तुम लोगों को पता है, होमो इरेक्टस को, जिसे प्राग ऐतिहासिक मानव भी कहा जाता है, इसका मस्तिष्क काफी बड़ा था, 800 से 1300 घन सेंटीमीटर तक। म्हणजे तो खूप पुढे गेला होता? हाँ, यह आग का उपयोग कर सकता था और समित आकार के औजार जैसे कुल्हाड़ी, हथौड़े, लकड़ी और हड्डी के उपकरण बना सकता था। And you know, in 1998, scientists made a remarkable discovery near Johannesburg. हाँ, और स्टर्क फोंटाइन में ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंकस की लगभग पूर्ण खोपड़ी और कंकाल मिला। यह अपनी तरह की सबसे पुरानी संपूर्ण खोजों में से एक थी। म्हणजे अजूनही नवं काहीतरी सापडतच आहे? हाँ,
हर नई खोज हमारे परिवार वृक्ष में एक नई शाखा जोड़ देती है। What once seemed like a straight line of evolution is now a complex, branching tree, and we are still discovering where each branch truly belongs. After millions of years of struggle, adaptation, and survival, a new chapter began. The evolution of Homo sapiens, anatomically modern humans, can be traced back some 35,000 to 40,000 years. म्हणजे रोजी आपल्यासारखे माणूस तेव्हापासून? हाँ, अब मस्तिष्क पूरी तरह विकसित हो चुका था। औजारों का उपयोग तेजी से उन्नत हुआ। मनुष्य ने धनुष और बाण का इस्तेमाल कर बड़े जानवरों का शिकार करना शुरू किया। I can give you some examples like they crossed oceans, they explored unknown lands, and they formed new flexible social groups. म्हणजे आता फक्त जगणं नव्हतं, विस्तार सुरू झाला होता. सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि दुनिया को समझना और बदलना शुरू हो चुका था। You know, then something extraordinary happened. Art appeared. लगभग 9000 वर्ष पहले मनुष्य ने सिर्फ शिकार करना ही नहीं, बल्कि चित्र बनाना भी शुरू किया। गुफाओं की दीवारों पर जीवन के दृश्य उभरने लगे। म्हणजे संघर्षातून सर्जनशीलता जन्माला आली. हाँ, यह केवल अस्तित्व की कहानी नहीं रही, यह अभिव्यक्ति की कहानी बन गई। You know, also our ancestors began to settle. They cultivated crops, they also domesticated cattle and other animals. यही वह समय था जब खाना बदोश जीवन धीरे धीरे स्थायी बस्तियों में बदलने लगा। खेती और पशुपालन ने समाज की संरचना बदल दी। म्हणजे आता गावं तयार झाली असतील ना? हाँ, और यही परिवर्तन आगे चलकर सभ्यता की नींव बना। Also, the earlier cities and written languages appeared around 5,500 years ago. With writing began recorded history. हाँ, लाखों वर्ष की विकास यात्रा अंत शब्दों में दर्ज होने लगी। म्हणजे आपण फक्त जगलो नाही, आपण कथा लिहायला सुरुवात केली. From fragile bones buried in African soil to fire, tools, art, cities, and language, we are not just the result of evolution. We are the result of struggle, curiosity, and imagination. Every fossil we discover is not just a bone, it is a reminder that we all share the same beginning, and perhaps the story of humanity is still being written. म्हणजे मित्रांनो, लाखो वर्षाचा प्रवास आणि शेवटी आपण इथे उभे आहोत. हाँ, एक छोटी सी हड्डी से शुरू हुई कहानी आज इंसान की सभ्यता तक पहुंच चुकी है। So, this was the story of how we began. But in the next episode, we explore how humans left Africa and changed the world forever. Till then, please like our video, share with every person who likes history and want to know more about history, and please subscribe our channel for more updates. Thank you so much for watching our video. Bye.